Firstly, I want to say thank you to the President Haji Namullah sir and the members of Samani Welfare Association who gave me this opportunity to say my viewpoint today. अंदाज़ बयां गर्ज बहुत शौक नहीं है, अंदाज़ बयां गर्ज बहुत शौक नहीं है, शायद ये उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात. I'm very glad to say that this group has completed the 5 years in Maharashtra. Give a big round of applause. All of us know that this group was very small, but now at present time, there is a great enhancement in this group, and I am very happy that this group is always ready for helping others. पहले किरदार तो फूलों सा तुम पैदा करो, पहले किरदार तो फूलों सा तुम पैदा करो, लोग चाहेंगे तुम्हें खुशबू की तरह. At my home, my dad, Mr. Vakil Ahmed Samani, used to always tell us about this group, that how they are helping to the poor people. For example, the Samani Welfare Association helps the patients with eye problem and cancer. They donated the money for such patients. And they had also provided the money for such patients. And the school fees, they had also provided the school fees for the poor people and also arranged the weddings for them. And so after listening all these good deeds, I really appreciate and thankful at the bottom of my heart to the President and members of Samani Welfare Association. मुकद्दर जिनके ऊंचे और आला वक्त होते हैं, मुकद्दर जिनके ऊंचे और आला वक्त होते हैं, जिंदगी में उन्हीं के इम्तिहान भी सख्त होते हैं. So, as you all know that today we all have gathered here for the prize distribution of SSC and HSC students of 2017, which is also organized by this group. So, give a big round of applause for that. And I always pray to God that this group become more stronger and successful in future. And I also want to congratulate this group that they are allotting their sufficient time in this. So my friends, as you all know, our parents spend so much of their money on us, like sending school, colleges, classes, coaching, etc. etc. And whatever we demand, they fulfill it. But what we people do, we always disappoint our parents. This is not good now. We should keep the best percentage. So from now, let's take a note. Students, are you ready? Let's take a note that we will give a good percentage, not good, excellent percentage to our parents and fulfill their dreams. Yes or no? Yes. Okay, thank you. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों की जान होती है. सपनों में देखना मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है. हम इससे खुश नहीं होता, हम इससे खुश नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. I want to say
thank you Usma for your appreciation words for the Samani Malik Welfare Association. And she took an oath that we will not down our parents. Yeah, students, you all guys have taken that oath. You will not down your parents. आप उनकी उम्मीदों को कभी नाउम्मीद नहीं होने देंगे. अभी अभी आप सारे लोगों ने शपथ लिया हुआ है. Now I would like to call Rizwan. Rizwan, our student who is pursuing civil engineering from Rizvi College. He will come and he will do some speech for the Samani Malik Welfare Association as well as for about his struggle, how he is struggling, how he is just growing his career in his life. Please come. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान सामानी है और मैं माहिम में रहता हूँ. मैं फाइनल ईयर सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से. मैं सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरा बहुत ताउन किया और पिछले कई सालों से इन्होंने मेरी पूरी इंजीनियरिंग की फ़ीस भरी है. मुझे याद है मेरा कॉलेज का पहला दिन था. सब कुछ नया था वहाँ पर, नई क्लास थी, नए टीचर्स थे और मज़े की बात ये थी कि वहाँ पे मेरे नए दोस्त भी थे. अचानक से हमारे एचओडी हमारी क्लास में आए और उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि आप लोग कौन से डिपार्टमेंट से हो. हमने कहा कि हम सिविल डिपार्टमेंट से. तो उन्होंने कहा कि आप फ्यूचर में क्या बनोगे. तो हमने कहा कि हम सिविल इंजीनियर्स बनेंगे. उन्होंने कहा कि फ्यूचर में करोगे क्या. तो हमने कहा कि हम कंस्ट्रक्शन लाइन में जाएंगे, क्योंकि उस वक्त हमें इतनी नॉलेज नहीं थी. सिर्फ इतना पता था कि सिविल इंजीनियरिंग करने से हम कंस्ट्रक्शन में जा सकते थे. फिर उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन में जाकर बनाओगे क्या. उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी कि इसमें बहुत सारी टाइप्स की बिल्डिंग्स होती है, कंस्ट्रक्शन होते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन होते हैं, रेलवे कंस्ट्रक्शन होते हैं, ब्रिज कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर, और बिल्डिंग से भी बहुत टाइप्स है. हमने कहा कि बिल्डिंग वगैरह का नाम नहीं लिया, हमने कहा कि इससे हम घर बनाएंगे. तो सर ने कहा कि तब आप लोग सिविल इंजीनियर से ही बन सकते. हमने कहा कि सिविल इंजीनियर नहीं बनेंगे तो फिर कौन से इंजीनियर बनेंगे. तो सर ने कहा कि आप सिविल इंजीनियर नहीं, आप सपनों के इंजीनियर बनोगे. तो बात समझ में तो नहीं आई थी उस वक्त, पर सुन के बहुत अच्छा लगा था कि हम सपनों के इंजीनियर बन जाएंगे. हमने कहा कि सर हम सपनों के इंजीनियर कैसे बनेंगे. सर ने कहा कि जब कोई इंसान काम करता है, उसकी एक महीने की तनख्वाह जब उसके हाथ में आती है, सारे अखराजात पर खर्च करने के बाद वो अपनी थोड़ी सी कमाई साइड में रख देता है. उसका एक सपना होता है एक घर. तो हम लोगों के घर नहीं सपने बनाया करते, इसलिए हम सिविल इंजीनियर नहीं, हम सपनों के इंजीनियर हैं. और अगर मैं सपनों का इंजीनियर बन गया तो इसका सारा क्रेडिट सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन को जाएगा. आज का ज़माना ऐसा है कि इंसान बहुत स्ट्रगल करता है, इंसान बिजी है, पर सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन के मेम्बरान ये अपना कीमती वक्त अपने कौम के लिए लगाते हैं, क्योंकि इनके दिलों में कौम का दर्द है. मुझे याद आता है अपनी यूनिटी बना कर रखो, क्योंकि जिसके पास यूनिटी है उसके पास पावर है और वो सब कुछ कर सकता है. अपनी यूनिटी बना कर रखो. अकबर बीरबल का एक कहावत है कि एक बार अकबर बादशाह ने क्या किया, एक टब मंगाया. टब पानी से भरा हुआ था और उसने क्या किया, एक पत्थर पानी के अंदर डाल दिया. अब सबको बुलाता है और सबसे यही पूछता है, वाई स्टोन इज सेटल डाउन इन द वाटर, कि पत्थर पानी में क्यों डूब गए. अब सब आते हैं, सब यही बोलते हैं, द वेट ऑफ मास ऑफ स्टोन इज मच हायर देन द वेट ऑफ मास ऑफ द वाटर, देन इट विल ऑटोमेटिकली सेटल डाउन. बादशाह ने कहा कि मुझे ये तो मालूम है, मुझे भी मालूम है ये कि पत्थर का वजन पानी की वजन से ज़्यादा था, इसलिए वो पानी में डूब गया, लेकिन मुझे कुछ नया जवाब चाहिए. सब दरबारी यही कहने लगे कि पत्थर का वजन ज़्यादा था इसलिए वो पानी में डूब गया. अब बारी आई बीरबल की, तो बीरबल से पूछा गया कि पत्थर पानी में क्यों डूब गया. तो बीरबल ने जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं इतना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो चीज़ आपके हाथ से छूट गई, जो चीज़ आपके हाथ से निकल गई वो डूब गई. तो आप अपनी यूनिटी के साथ में रहोगे, अपनी पावर के साथ में रहोगे तो हमेशा आगे रहोगे. अगर जो अकेले रहोगे तो डूब जाओगे. और एक मैंने जुमला कहा था कि मेरे नए दोस्त थे. दोस्तों के मुताबिक एक बात बताना चाहूँगा, जितने भी यहाँ पे 12th और 10th पास बच्चे आए हुए हैं,
उनसे गुजारिश है कि ऐसे बच्चों के पास ना जाए जिनके दोस्त होते हैं जो धक्के मार के पास होते हैं, यानी 40 जस्ट क्रॉस होते हैं या 40 से नीचे होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 70 के ऊपर होते हैं, स्कॉलर होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो दोस्त हैं जो पीछे रह गए, ये लोग सोचते हैं अब तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, अब मुझे अकेला दूसरे गांव खेड़े में जाना पड़ेगा, छोटा कोर्स करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली अपने जो ज़्यादा परसेंट लेके आए हैं बच्चे लोग, उनको अपनी तरफ ना घसीटना शुरू कर देते हैं। बोले वो क्या कर रहा है, ये कर, ये बहुत अच्छा है, ऐसा उनको फुसलाना शुरू कर देते हैं बच्चों की तरह। जैसे जो कोर्स वो लोग करने जा रहे हैं, जैसे लगता है कि ऐसे उनको कमीशन मिल रहा है कि बच्चे पकड़ कर लेकर आओ। तो ऐसे बच्चों के बहकावे में ना जाए। और वो जो स्कॉलर होते हैं वो भी उनकी बात में आते हैं, अरे अब तो मैं वही करूँगा जो मेरे दोस्त ने बोला, अपने अरमानों का गला घोट देते, अपनी ख्वाहिश कुछ नहीं देखते वो लोग। तो उनके साथ ना जाए, ना उनकी कोई सुने, सिर्फ जो अपना दिल करता है वही करे। अभी मैं आज यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये मेरा शौक़ है। मेरा शौक़ पता है क्या है, कि मुझे हाईलाइट होना बहुत पसंद है, मैं मशहूर होना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं लाखों की पब्लिक के भी खड़ा रहूँ ना, तो सब मुझे यहाँ फट से पहचान ले कि वही मोहम्मद रिजवान है। मैं ऐसा चाहता हूँ, और आज मेरा शौक़ ही मुझे यहाँ पे खड़ा किया है। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी 2-4 पर्सन के सामने भी नहीं बोला हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ इतने सारे लोग के सामने खड़ के कह रहा हूँ, सिर्फ ये मेरा पैशन मेरा बोल रहा है, बस बाकी और कुछ नहीं। और एक टॉपिक था, नशे के बारे में था। सामाजिक मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन ने नशे के खिलाफ भी बहुत मुहिम उठाई है। तो आज हमारी कौम की ऐसी हालत हो गई है कि सब नशे करके बर्बाद हो गए, किसी को कुछ होश नहीं है। आज हमारी कौम की यह हालत देखकर मुझे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का एक कॉल याद आ गया। उनका कॉल ये था कि अगर कोई कौम हो जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर हो, उन्हें हम पावर से हरा नहीं सकते, ना लड़कर हरा सकते, ना उन्हें एजुकेशन में हरा सकते, ना किसी भी चीज़ से हम नहीं हरा सकते। तो उनके नौजवानों में फहाशी फैला दो, यानी उनके नौजवानों में गंदापन फैला दो, नशा फैला दो, वो कौम खुद ब खुद हार जाएगी। और यही हालत आज हमारी हो गई है कि आज किसी को कुछ नहीं पड़ी है, सिर्फ नशा कर रहे हैं, माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी आप ये सब ना करें, बड़ों की इज्जत करें, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें और सबसे अच्छा उसने सलूक करें। और मैं सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने मेरा बहुत ताउन किया, और इंशाअल्लाह आगे भी करेंगे, और मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी इस बच्चे रिजवान ने अपने बारे में आप लोगों को बताया। ये बच्चा फर्स्ट ईयर पे सिविल इंजीनियरिंग जब से कर रहा है, जब से सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन इसकी मदद कर रही है। पढ़ने में होशियार था, हमने इसके टैलेंट को परखा और हमें लगा कि ये बच्चा कुछ आगे जाकर कुछ बन सकता है। तो हमने कोशिश की कि हम इसकी फाइनेंशियली कुछ मदद करें ताकि ये बच्चा आगे बढ़ सके। और इंशाअल्लाह ये अभी फाइनल ईयर में है और आगे जाके सिविल इंजीनियर बनेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन के लिए करेगा। ये जो प्रोग्राम हमने किया है, इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए कुछ बच्चे निकले यहाँ से, अपनी बिरादरी में से कुछ बच्चे निकले जो आला से आला तालीम हासिल करें और इस बिरादरी को उसके बदले कुछ ना कुछ उनसे मिले। कोशिश हमारी यही है। मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए ये ऐलान भी करना चाहता हूँ कि अगर हमारी बिरादरी में ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, जो काबिल हैं, जो एफिशिएंट हैं, लेकिन पैसे की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सामने आए। इंशाअल्लाह सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन उनके लिए जो भी हो सकेगा वो करेंगे हम। अब मैं, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का इसका आगाज करूँगा। और आ जाइए आप। शुरुआत एसएससी से करेंगे और जो बच्चे फील्ड में जाते हैं तो 10वीं के बाद आपको चाहिए कि बायोफोकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, पीसीएम, ये सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए। यहाँ जो 10वीं के बाद 11 में जिन बच्चों ने इस सब्जेक्ट का अगर सिलेक्शन किया तो बहुत अच्छा। अब ये ना सोचे कि मैंने फला सब्जेक्ट ले लिया हूँ अब क्या होगा, ऐसी बात है। आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, जरूर हम आपकी रहनुमाई करेंगे। तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी
में जो बच्चे जाना चाहते हैं वो बायोफोकल साइंस, उसका शॉर्ट में कहते हैं PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब जो बच्चे मेडिकल पैरामेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, तो इशारा आ गया, मुझे शॉर्ट में करना है। तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसी तरह से अपनी बात को मैं थोड़ी मुख्तसर करता हूँ। अब है एंट्रेंस एग्जाम, जो 10वीं के बाद अपने 12वीं के बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट और भी जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम बहुत लाजमी है। ये तमाम उसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले उसको ज़हन नशीन कर लीजिए। अगर आप 12वीं में बहुत अच्छे नंबर से कामयाब हो गए और आपने किसी वजह से एंट्रेंस एग्जाम दे दिए तो आपका एडमिशन नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें। अब वो एग्जाम की तैयारी कैसे करें? आप बहुत बड़ी क्लासों में एडमिशन लेते हैं और उसकी फीस बहुत ज़्यादा दे, कोई 1 लाख देता है, 50,000, 60,000, अलग अलग क्लासेस के रेट होते हैं। तो आपको चाहिए मेडिकल और इंजीनियरिंग या जो भी यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं जो 12वीं के बाद मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये स्टूडेंट को चाहिए कि अपनी टेक्स्ट बुक 11 एंड 12 11वीं और 12वीं की जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको बार बार रिपीट कीजिए, दोहराइए। जितनी ज्यादा मरतबा इसका रिवीजन करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि सवाल जो एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। एक ऑप्शन दिया जाता है, उसके 4 आंसर होते हैं, उसमें सही आंसर को गोल राउंड करना होता है। और यही जो कॉलेज जो कोचिंग क्लासेस वाले होते हैं ये टेक्निक बताते नहीं है, इससे अक्सर हमारे बच्चों को जो एंट्रेंस एग्जाम उसमें नंबर कम मिले। उसकी वजह यह है कि वो टेक्स्ट बुक 11 और 12 की अच्छे से पढ़े, बार बार पढ़े और जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है क्वेश्चन और जो टाइप आप खुद बनाइए और कोई एक बुक को प्रिपेयर कीजिए, ज़्यादा नहीं। कोई कहता है टारगेट लीजिए, कोई कहता नोट लीजिए, कोई कहता बना लीजिए, ऐसा नहीं। आपको कोई बुक अच्छी लगती है उसका लैंग्वेज देखिए, उसका कंटेंट देखिए और उसी बुक से आप पढ़ाइए एंट्रेंस एग्जाम के लिए और उसको बार बार रिपीट कीजिए। जितना ज्यादा आप उसको रिपीट करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। दूसरी चीज, आंसर जो लिखना होता है वो ब्लैक पेन इस्तेमाल करते हैं। सवाल रिपीट कीजिए। पेट्रोलियम इंजीनियर के लिए क्या प्रोसेस है? ठीक है, सवाल आपका ठीक है, मैं बता चुका हूँ। देखिए, असल में ये मौजूद ऐसा है कि इस पे मुझे कम वक्त पे बात को, जैसा 20-20 मैच होता है ना और फास्ट बॉलिंग होती है, रन ज़्यादा बनाना होता है, तो वैसा हिसाब तो मैं अपने रन बना के निकल गया। कुछ उसमें ये हो गए, बीट हो गए। तो मैंने आपका सवाल अच्छा है। देखिए, इंजीनियरिंग जो होता है, बात मेरी प्रोफेसर हो गई यहाँ पर, मैं रुपये आपसे गुफ्तगू करते हुए इंजीनियरिंग में जैसा मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसमें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग बच्चे ने पूछा है। तो जितने इंजीनियरिंग कोर्सेज है इसमें से एक ये पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। इस कोर्स में पेट्रोलियम एंड गैस के बारे में हम किस तरह से बताया जाता है वो सिखाया जाता है। अब ये पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ये 2 तरीके से कर सकते हैं। 10वीं के बाद 3 साल का कोर्स होता है पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग और 12वीं के बाद ये 4 साल का कोर्स होता है और इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना लाजमी है। एक एंट्रेंस एग्जाम आपको और बता दूं, जो 12वीं के बच्चे ने सवाल किया है कि JEE, ये IIM जो होता है ना, ITI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके तहत JEE का एग्जाम होता है। यहाँ से भी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जो करता है उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और आप महाराष्ट्र लेवल पे जो CT देंगे उसके जरिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये 4 साल का कोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं, पहले ये मुझे बताइए आप। BSc from biology, then after BSc MSc, and after MSc 2 years of PhD. अच्छा, ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पर आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है? Biology. बायोलॉजी। तो ठीक है, सबसे पहले आप BSc कीजिए बायोलॉजी से, ओके। और बायोलॉजी में आप
फर्स्ट क्लास में आने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा MSc। ये 2 साल का कोर्स होगा। पहले आप 10+2 यानी 12 में भी आप हैं, उसके बाद 10+3 होगा, उसमें आप BSc हो जाओगे अपने BSc बायोलॉजी सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले आपने मालूम करना है आपको, आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, तो आपके BOD में जो कॉलेज है ना, गर्ल्स कॉलेज, मालूम है गर्ल्स कॉलेज? I am studying only girls college only. हाँ, तो भूकंप मुक्ति में एलिजिबल स्टूडेंट की जो गर्ल्स कॉलेज है वहाँ पर बायोलॉजी सब्जेक्ट अवेलेबल है। वहाँ से आप बायोलॉजी में BSc कीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको बॉम्बे में से भी जाना होगा। वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% का टारगेट रखोगे। ये 2 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। उसके बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी के लिए PET का एग्जाम देना होगा। इंट्रेंस एग्जाम होता है PhD के लिए, PET। ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप बायोलॉजी में PhD कर सकोगे। The entrance exam is compulsory for PhD. तमाम अभी लास्ट ईयर से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने PhD के लिए एंट्रेंस एग्जाम को कंपलसरी कर दिया है। उसका नाम है PET। ओके, ठीक है। देखो बच्चे को फायदा रहेगा। I did my HSC from Commerce Stream. I got 77.08. क्या मतलब लॉ कर सकते लड़कियां की रेस्ट्रिक्शन है इसमें? लॉ करना चाहती है? CD का एग्जाम भी दी। कौन सा? CD। हाँ पता है। देखो किसी का सवाल बहुत अच्छा किया। लॉ करना चाहते, अच्छी बात है। और लॉ के लिए है कि आप उसके लिए 2 रास्ते हैं। एक है आफ्टर 12 5 ईयर का कोर्स होता है लॉ। दूसरा होता है आफ्टर ग्रेजुएशन 2 इयर्स होता है। और अब आप 12 के बाद जाना चाहते हैं किसी भी फैकल्टी में, चाहे आर्ट्स के हो, स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो या साइंस के हो, आफ्टर 12 किसी भी फैकल्टी से आप बारहवीं करते हैं 50% उसमें चाहिए नंबर। और उसके लिए इंट्रेंस एग्जाम आपको CET देना होगा। उसके बगैर आपका एडमिशन लॉ में नहीं होगा। सर एक मिनट में आपको रोकूंगा। उनका क्वेश्चन ये नहीं है, वो एक्चुअली ये पूछना चाह रहे हैं कि एज अ मुस्लिम कम्युनिटी उनको LLB करना है तो इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शन फॉर देम एज अ गर्ल? नहीं, ऐसा तो ये नहीं है। कोई भी कम्युनिटी बच्ची कर सकती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, दुनिया की कोई ताकत, कोई भी शख्स आपको तालीम हासिल करने से चाहे कोई किसी भी धर्म जात का कहीं रोकता नहीं, तो उसके लिए रोक तो नहीं है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, बताइए। सर मैं अभी IT कर रहा हूँ आफ्टर 10। उसके बाद मुझे मर्चेंट नेवी का ऑफिसर तो कैसा क्या करना है? मर्चेंट नेवी का ऑफिसर। बच्चे का सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ पर बच्चे ने सवाल किया ITI से आप देखिए, ITI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आफ्टर 12 या आफ्टर 10? आफ्टर 10। हाँ, तो आफ्टर 10 आप ITI कर रहे हैं ना बेटे? IT डिप्लोमा। नहीं, आप 10वीं के बाद ITI से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं ना? और डिप्लोमा कर रहे हैं। हाँ, अब डिप्लोमा कर रहे हैं तो मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं। हाँ, तो भाई देखिए मैं बताता हूँ आपको। अभी बच्चे का सवाल बहुत अच्छा है। मर्चेंट नेवी में जाना चाहता है और आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने ली है। तो यहाँ पे जहाँ आपको एक दिक्कत ये आएगी कि मर्चेंट नेवी में मैकेनिकल जो बच्चे करते हैं, BE करता है मैकेनिकल में, उनके लिए 1 ईयर कोर्स होता है मर्चेंट नेवी का। तो आपके लिए यहाँ पर थोड़ी रुकावट आएगी, आप वहाँ नहीं जा सकते। अलबत्ता मर्चेंट नेवी के लिए जो वैकेंसी निकलती है IT की, वो आपको देना होगा, लेकिन उसके जॉब की अपॉर्चुनिटीज कम होती है। तो आप वो मर्चेंट नेवी का अपने दिली दिमाग से बात निकाल दीजिए और आप उस फील्ड में ही अपना कैरियर बनाइए। मोहम्मद अनस अब्दुल सलाम।
अलाउद्दीन। फातिमा सैफुल्लाह। शेख फातिमा सैफुल्लाह। समानी अबू बकर इकबाल अहमद। शेख रुकैया रफीउल्लाह। शेख रुकैया रफीउल्लाह शायद नहीं आई है। शेख सादिया जफर अली। खान सरफराज शहजाद। डॉक्टर शकील साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर हैं। डॉक्टर शकील। और एक अतर हुसैन करके थी, अतर हुसैन। शेख शाहनवाज मोहम्मद मुबीन। हुसैन साहब मुंब्रा वाले। साकिब सलीम। शेख साकिब सलीम। शेख सायरा सफीउल्लाह। शेख सायरा सफीउल्लाह। शेख मोहम्मद अहमद रमजान अली। शेख मोहम्मद अहमद रमजान अली। शेख नशरा नियाजुल्लाह। शेख नशरा नियाजुल्लाह। शेख उमैज अहमद अब्दुल करीम। शेख उमैज अहमद अब्दुल करीम। सामानी आमिर अतर हुसैन। सामानी आमिर अतर हुसैन। शहजाद सामानी साहब से दरख्वास्त है कि स्टेज पे है। आमिर अतर
सामानी तरन्नुम इनामुल्ला, साहिबा मोहम्मद रईस सामानी, आजाद सामानी साहब तो दरख्वास्त है कि स्टेज पे आ जाए। आजाद सामानी और भोला भाई आजमी तहसील फातिमा मोहम्मद ईसा सामानी, उम्मे हबीबा नईमुद्दीन सामानी, उम्मे हबीबा प्लीज कम ऑन स्टेज। शेख शमा वकील, शेख शमा वकील, प्लीज आप लोग बच्चों की हौसला अफजाई करें, बच्चे बहुत मेहनत करके पास होते हैं। शेख शमा वकील सामानी, शकील मोहम्मद मुस्लिम सामानी, शकील मोहम्मद सामानी, मोहम्मद मोअज्जम मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद मोअज्जम मोहम्मद यूनुस, शहजाद खान जैनब शहजाद, खान जैनब शहजाद, शेख साइमा अब्दुल अजीम, शेख साइमा अब्दुल अजीम, सामानी अब्दुल रहमान मोहम्मद इलियास, जुल्फिकार साहब राबोड़ी, शबनम खातून नूर मोहम्मद, शबनम खातून नूर मोहम्मद, शेख उमर जावेद दिलशेद, शेख उमर जावेद दिलशेद, चौधरी अल्फिया मोहम्मद शकील, चौधरी अल्फिया मोहम्मद शकील, अलाउद्दीन, सामानी सबाना सनाउल्ला,
यूनुस, सॉरी, सामानी सोहराबी मोहम्मद यूनुस, प्लीज कम ऑन स्टेज। Very nice. Congratulations. Sheikh Tasmiya Abdul Samad. Wonderful marks. Please, a big round of applause. सामानी आसिफ अख्तर हुसैन, बेटा शेख शाहीन मोइनुद्दीन, शेख शाहीन मोइनुद्दीन, बेटा उस्मानी शोएब मेहदी हसन, वेरी गुड। सामानी बिलाल अहमद अब्दुल्ला, बिलाल अहमद, आप क्या हो बेटा, वेरी गुड। शेख मरियम हजरत हुसैन, शेख मरियम हजरत हुसैन, वंडरफुल मार्क। सामानी नईमुद्दीन भाई से गुजारिश है कि वो स्टेज पर हैं। सामानी आफ्ताब आलम अब्दुल सलाम, सामानी आफ्ताब आलम अब्दुल सलाम 81.60। अब्दुल रब जमालुद्दीन, अब्दुल रब जमालुद्दीन 82.00। सामानी शमा आजाद अहमद, सामानी हाजी हमीदुल्ला साहब, हाजी हमीदुल्ला साहब स्टेज पे आ जाइए। सामानी सना आजाद अहमद, both the sister very close 82.60। शेख आकिब अब्दुल समद, प्लीज सामानी वेलफेयर एसोसिएशन, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमें अप्रिशिएट करने के लिए प्रोग्राम रखा, इसलिए मैं ये आशा कहना चाहती हूँ, एहसास अमल की चिंगारी जिस दिल में फिरोजा होती है
Aqib Abdul Samad, 83.20. Great marks. Sheikh Saliha Bano Mohammad Arif. Sheikh Saliha Bano Mohammad Arif, 84.00. Thank you, this association, for appreciating us in such a good manner, and it's very proud to us. Thank you. Sheikh is practicing Khairani Road, and ये बहुत ही हमदर्द है कमेटी के। शेख फारूक मोहम्मद इलियास, शेख फारूक मोहम्मद इलियास, 84.80. Great work, always paid off. रहमानी अफसाना हकीकुल्लाह, रहमानी अफसाना हकीकुल्लाह, 85.40. रेहाना खातून अब्दुल राशिद, रेहाना खातून अब्दुल राशिद, अब्दुल राशिद साहब हैं क्या यहाँ? खान इरफान रमजान अली, 88.00. ये हमारे जितने भी अभी तक स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं, एक्सक्यूज मी, अरे इतना दिन आओ, ये टॉप 3 में से इज वन ऑफ देम। 88% आया है इनका। 88%। कुछ बोलना चाहोगे? शेख अहमद रजा मोहम्मद जब्बार, 88.6%। सेकेंड रैंक है अपनी बिरादरी में। सेकेंड रैंक है। तुम तो जरूर कुछ बोलना चाहोगे दोस्त। शेख अहमद रजा मोहम्मद जब्बार, शेख मेहताब अहमद अब्दुल हकीम, इनके लिए जोरदार तालियां। इनका 90.8% आया है। अरे इनका टॉपर जितने भी स्टूडेंट हमारे पास आए हमारी मिले के मौके देना ये टॉप का चार्ज। ग्रेट अप्लॉज। तो कहना चाहोगे? ऐसे बच्चे बोले बोले, लेकिन ये सामने से एक बहुत बड़े एग्जाम्पल होते हैं। पढ़ाई कैसे किया उसके बाद? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। इनकी सरपरस्ती है जो कमेटी इतनी मजबूती के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ रही है। थैंक यू वेरी मच सदर साहब। अभी एचएससी के तकरीबन सब खत्म हो चुके हैं, तो एचएससी का शुरू करने से पहले हमारे बीच में कुछ मेहमान हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी हम गुलपोशी कर लें। थैंक यू वेरी मच। जनाब यूनुस साहब
बारामती से आए हुए हमारे मेहमान हैं, बहुत दूर से सफर करके आए हैं। हाजी नामुल्ला साहब और अब्दुल्ला सामानी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा उनकी गुलपोशी करें। थैंक यू वेरी मच। हजरत इतनी दूर से सफर करके हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। मोहम्मद तारिक जबीर मोहम्मद इब्राहिम त्रिपाठी वाले शेख अस्मा जबुल्ला आवाज करो भाई। शेख अस्मा जबुल्ला किस भाई ने लाइक करना है इसे रशीद अहमद वलीउल्लाह खान मोहम्मद इसरार वासिक अली खान मोहम्मद इसरार वासिक अली, शुक्रिया अजीज भाई। अखलाक भाई आतिफ अब्दुल समद नौशाद अब्दुल कलाम नौशाद अब्दुल कलाम वकील भाई आ जाइए। वकील भाई खान हुमैरा खातून शाह आलम खान हुमैरा नाम बोल लो। मोहम्मद सोहेल मोहम्मद तारिक, मोहम्मद सोहेल मोहम्मद तारिक, शेख शिफा जजीर अहमद शेख शिफा
फिरदौस अजीज, शेख अतिया फिरदौस अजीज, इन्होंने 66 परसेंट लाया है, इनके लिए जोरदार तालियां। खान राना मोइनुद्दीन, खान राना मोइनुद्दीन, शेख मोहम्मद शरीफ हकीकुल्ला, शेख मोहम्मद शरीफ हकीकुल्ला, बैलिंग में जमीन निसार अहमद, शाह मोहम्मद भाई, बैलिंग में जमीन निसार अहमद नहीं है, शेख हिना वकील, शेख हिना वकील, सामानी तमरीन इलियास, सामानी तमरीन इलियास, सामानी तमरीन इलियास, शेख कहकशा बानो, शेख कहकशा बानो, मुनीर अहमद, मुनीर अली, शेख कहकशा बानो मुनीर अली, 77.08, वेरी गुड। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला निजामुद्दीन, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला निजामुद्दीन, Sheikh Mohammad Abdullah Nijamuddin is ranking 1. He is a topper of our 82.77%. Well done. खान रेहाना मोइनुद्दीन, इनके गार्जियन बेटिम महजबी निसार, खान रेहाना मोइनुद्दीन, कोई गार्जियन है उनका? ट्रॉफी दे रहे हैं, तो जोया सामानी प्लीज, मैं चाहूँगा कि बजाना भाई जोया, जोया इधर देखो चाचू, show that she was have topped the rank, 95.8%. एक्चुअली हमने एक एक्सीलेंस अवार्ड रखा हुआ है, जिन्होंने कुछ स्पेशल अचीवमेंट किया हुआ है, कुछ स्पेशल अभी इन्होंने जो वर्कआउट किया हुआ है उन सब चीज़ों के लिए हम दे रहे हैं। इन्होंने सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में शी इज द टॉपिक मुंबई यूनिवर्सिटी
फिनिश हो जाएगा